हेलो स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर की एक और फेमस प्ले के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। दैट इज जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दिस इज एज यू लाइक इट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्ले। दिस इज कॉमेडी। जेनर ऑफ दिस प्ले दिस इज कॉमेडी। इससे पहले विलियम शेक्सपियर के चार बहुत ही फेमस ट्रेजेडीज के बारे में हमने एक अलग अलग सेपरेट सेपरेट वीडियोस बनाए हैं, जिसमें हमने सभी करेक्टर्स और करेक्टर्स के गुड एक्सप्लेनेशन को भी हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा प्रत्येक ट्रेजेडी पर मैंने 50 to 70 क्वेश्चंस जो कि पीजीटी टीजीटी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी डिस्कस किया, उनका भी सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उनको जरूर देख लें, ताकि आपकी टीजीटी पीजीटी की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो तैयारी थोड़ी अच्छे से हो जाएगी। आज हम देखेंगे विलियम शेक्सपियर की बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले एज यू लाइक इट के बारे में। सभी कैरेक्टर को जानेंगे, उनकी गुड एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन कैरेक्टर नेम से भी पूछ लिए जाते हैं कि ये कैरेक्टर किस विलियम शेक्सपियर के किस प्ले या किस ट्रेजेडी का पार्ट है। आइए जानते हैं इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन को डिटेल से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कैरेक्टर लिस्ट है। दिस इज कैरेक्टर्स लिस्ट इन द प्ले एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट के सभी कैरेक्टर्स को मैंने यहाँ इनलिस्टेड किया है। बारी बारी से पहले हम कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम उनके एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे कि इन कैरेक्टर्स का इस प्ले के अंदर क्या महत्वपूर्ण रोल रहा है। Very important character. This is Rosalind. This is female protagonist. She has played very important role. She was generally seen in the play as disguise. Yes, in disguise she is seen in the play. She disguised as a Ganymede. Yes, as a Ganymede. So friends, this is a very important character. Next one is, this is Jax. This is also very important character. Next one is Touchstone. Very frequently this question is asked, which in which play of William Shakespeare this character appears, that is Touchstones. So all the characters, they are very important. So next one is Duke Senior. This is again very important character. Duke Senior, he is appeared to be very gentle, to be very kind-hearted, and he was optimistic as well. So he was exiled, and his whole kingdom was usurped by his brother, that is Duke Frederick. Yes, Duke Frederick was his younger brother. Duke Senior was elder, and Duke Frederick was younger brother. ड्यूक सीनियर के ड्यूकडम को ड्यूक फेडरिक पोजेशन में ले लेता है और ड्यूक सीनियर को एग्जाइल में भेज देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, दैट इज सीलिया. Yes, this is also important character. She is the daughter of Duke Frederick. Yes, but as I told right now, uh, Rosalind, she was daughter of Duke Senior, but Duke Frederick exiled her also, his niece, that is Rosalind. Other important character, that is Orlando. This is also very important character. Orlando and Oliver were two brothers. They were very important characters, and they played very important role in the play. Let us know some more characters. As I told you, the next character, they are Sylvius. She is also very important character, and Phoebe, she is very humorous character and appeared to be Shepherds, and Oliver also, as I told right now, Oliver and Orlando were two brothers, and they had played very important role. Next one is
Jacques Du Bois. Yes, Jacques Du Bois. He is also very important character in the play. Other important characters, they are Audrey. This is also correct important character. Corinne, Le Beau, William, and Amiens. Amiens. This is also important character. But the Charles, this is very important character. It appeared to be a wrestler in the play. So students, I have all discussed all about the characters, how many characters they appear in William Shakespeare's famous play, that is As You Like It. As up to now we have to come to know Shakespeare's plays are multi characters. They have multi characters in the play. So let us know some details about the characters, what the play exactly they have played in the play, in this play. Students, this is very important character, Duke Senior. As I told right before, Duke Senior, the main character, but he was exiled because his kingdom was usurped by his younger brother. Duke Senior was Father Rosalind, the female protagonist in the play, the rightful ruler of dukedom. Yes, he was rightful dukedom, ruler of dukedom, which was usurped by his younger brother, that is Frederick, Duke Frederick. Having been banished by usurping brothers Frederick, as I told, he was exiled to the forest of Arden. We will discuss later. So his kingdom was taken possession by his younger brother Frederick. Yes, senior Duke Senior, he lives in exile in the forest of Arden. This is very important name. Very frequently this question is put up in many PGT and TGT examinations or many other state teacher recruitment examinations. So Arden, the name of forest, appears in which of play of William Shakespeare. So this is very important name. With number of loyal men, including Lord Amiens and Jacques. Duke Senior was exiled. He had numerous loyal friends, loyal counselors, but Lord Amiens and Jack, they were very important and had played very important role in the play. We have sensed that Senior didn't put up much of fight to keep his dukedom. Yes, as I told before, Duke Senior was very gentle, very kind-hearted. He didn't want to fight against his brother Duke Frederick to get his dukedom back. He seems the most whatever life gives him. He appeared to be very content. He believes in God. He believes what the life has given him. He was satisfied with it. Actually, ड्यूक सीनियर वाज वेरी काइंड हार्टेड. वह बिल्कुल भी अपने छोटे भाई ड्यूक फेडरिक से झगड़ा नहीं करना चाहता. वो अपने ड्यूकडम को वापस पाने के लिए किसी प्रकार का खून खराबा या युद्ध नहीं चाहता है और जीवन ने जो उसे दिया है उसी में वो संतुष्ट रहना पसंद करता है और जंगल के जीवन में वो बहुत अभ्यस्त हो गया है. जंगल में he claims to learn as much as from the stones and the brooks. वो भरोसा करता है कि शहरों में रह कर के as he would in church and library, वो विश्वास करता है कि किसी चर्च में किसी लाइब्रेरी में से किताबों को पढ़ के जो ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं वो ज्ञान हम जंगल में रह कर के पत्थरों और झीलों नदियों से भी सीख सकते हैं. इस प्रकार से वो जीवन में बड़ा आशावान है और वो संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति है. ड्यूक सीनियर proves himself to be a kind and fair-minded ruler. In the whole play, we have seen that Duke Senior was very gentle, very kind-hearted, and very fair-minded ruler.
He being very true ruler of the dukedom, he didn't fight against his Frederick, younger brother, Duke Frederick. सो बहुत इंपॉर्टेंट पात्र है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। कुछ और कैरेक्टर्स के बारे में भी जानते हैं। Second important character, that is Duke Frederick. This is Duke Frederick. As I told in the beginning, in the explanation of the characters, there were two brothers. One was Duke Senior, the true ruler of the dukedom, but second one was Duke Frederick, who usurps his brother's dukedom. The brother of Duke Senior, who was Duke Frederick, he was the younger brother of Duke Senior, and he usurps his throne illegally. गलत तरीके से अपने भाई की राजगद्दी को, ड्यूकडम को छीन लेता है। एंड ड्यूक Frederick's cruel nature and volatile temper are displayed in the play. ड्यूक फेडरिक बहुत ही क्रूअल किस्म का व्यक्ति है और बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है। ये सारे उसके कैरेक्टर के एस्पेक्ट इस प्ले में स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। When he banishes his niece रोजालिंड, जब अपनी भतीजी रोजालिंड जो कि ड्यूक सीनियर की बेटी है और उसकी खुद की भतीजी है, वो उसे जंगलों में भेज देता है, निर्वासित कर देता है। किसको? रोजालिंड को। फ्रॉम द कोर्ट विदाउट रीजन, कोई भी रीजन न होने के बावजूद उसको जंगल में भेज देता है, जिस प्रकार से उसके पिता ड्यूक सीनियर को जंगल में भेज दिया है। तो इस प्रकार के ड्यूक फेडरिक की निर्दयता और निष्ठुरता नाटक में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट कैरेक्टर, दिस इज द सीलिया। हिज ओन डॉटर कैन नॉट मिटिगेट हिज अनफाउंडेड एंगर, डेमोन्स्ट्रेट्स द इंटेंसिटी ऑफ ड्यूक्स हिटफुलनेस। ड्यूक फेडरिक की बेटी सीलिया अपने पिता के इस निष्ठुर व्यवहार से प्रसन्न नहीं होती है। वो उनके अनफाउंडेड एंगर, बिना किसी कारण के निराधार जो क्रोध है जिसका कि कोई वजह नहीं है, वो कम नहीं कर पाती, क्योंकि उसने उसके अपने भाई की बेटी रोजालिंड को जंगल में भेज दिया है। रोजालिंड सीलिया की अच्छी सहेली भी है, अतः सीलिया भी राज्य को छोड़ करके रोजालिंड के पीछे आर्डन जंगल में चली जाती है। ड्यूक फेडरिक बहुत ही निर्दयी और अत्याचारी है। ड्यूक फेडरिक माउंट्स आर्मी अगेंस्ट हिज एक्साइल्ड ब्रदर बट shorts his vengeful mission after meets an old religious man on the road to the forest of Arden. वह अपने भाई जो कि निर्वासित है, जंगल आर्डन के जंगल में रहता है, ड्यूक सीनियर, उसके खिलाफ एक सेना तैयार करके उसे मारने के लिए जंगल की तरफ कूच करता है। लेकिन तभी उसे जंगल के रास्तों पर एक साधु दिखाई देता है और उसके मिलने के बाद वो अपने इस बदला लेने वाले मिशन को स्थगित कर देता है। इस प्रकार से अचानक से उसके व्यवहार में एक परिवर्तन आता है। ही इमीडिएटली चेंजेस हिज वेज, डेडिकेटिंग हिमसेल्फ टू अ मोनास्टिक लाइफ, रिटर्निंग टू क्राउन टू हिज ब्रदर। और अचानक से उसमें एक परिवर्तन आता है और वह अपने ड्यूकडम को, अपने भाई को वापस लौटा देता है, जिसका कि उसका भाई वास्तव में हकदार होता है। इस प्रकार से ड्यूक फेडरिक का दोहरा चरित्र दिखाई पड़ता है। पहले वो निर्दयी और अत्याचारी होता है, अपने भाई और भतीजी को जंगल में निर्वासित कर देता है, भाई को मारने के लिए एक सेना भेजता है, लेकिन बहुत शीघ्र ही वो एकदम से बदल जाता है और अपना पूरा राज्य, पूरा ड्यूकडम अपने बड़े भाई ड्यूक सीनियर को लौटा देता है। नेक्स्ट कैरेक्टर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसा कि हमने कैरेक्टर लिस्ट में जब अपनी चर्चा की थी तब इसके बारे में बताया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। शी इज फीमेल प्रोटैगनिस्ट इन दिस प्ले, दैट इज रोजालिंड। रोजालिंड assumes second name on his exile, that was Ganymede. So Rosalind was daughter of Duke Senior
and Rosalind considered one of Shakespeare's most delightful heroines in the play. रोजालिंड शेक्सपियर के सभी ज़्यादातर नाटकों में एक बहुत ही लोकप्रिय एक हीरोइन के रूप में, एक नायिका के रूप में प्रस्तुत की गई है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, क्योंकि शी वॉज इंडिपेंडेंट माइंडेड, स्ट्रॉन्ग वाइल्ड, गुड हार्टेड एंड टेरिबली क्लेवर। ये सारे गुण उसको एक विशिष्ट महिला के रूप में, एक अच्छे फीमेल कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट करते हैं। वो इंडिपेंडेंट माइंडसेट वाली महिला है, स्ट्रॉन्ग वाइल्ड और उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, गुड हार्टेड अच्छे स्वभाव वाली लेडी है, साथ ही साथ वो बहुत ही चालाक और समझदार भी है। इसीलिए रोजालिंड विलियम शेक्सपियर की अक्सर प्लेज में यह पात्र अपीयर होता ही है। Rosalind resourcefully uses her trip to Forest of Arden as an opportunity to take रोजालिंड बहुत ही समझदार और होशियार लड़की है, होशियार फीमेल पात्र है, जो जंगल में भी सभी जंगल के संसाधनों से भी एक अच्छे मौके की तलाश करती है और वह अपने भाग्य के ऊपर नियंत्रण करती है। वह अपनी परेशानियों से बिल्कुल भी डरती नहीं है। Rosalind, when she was disguises herself as Ganymede, a handsome young man, वो गैनीमीड नाम के एक हैंडसम यंग मैन, एक सुंदर से व्यक्ति के रूप में अपने आप का अपना भेष बदल लेती है और आर्डन के जंगलों में चली जाती है। एज ए मैन शी ऑफर्स एज ए ट्यूटर इन अ वे ऑफ लव टू बिलोव्ड ऑरलैंडो। ऑरलैंडो जिसकी जिक्र मैंने अभी की थी, जो दो भाई हैं ओलिवर और ऑरलैंडो। ऑरलैंडो बहुत सीधा और अच्छा व्यक्ति है, जब ओलिवर बड़ा ही क्रूअल और दुष्ट किस्म का कैरेक्टर विलियम शेक्सपियर ने यहाँ प्रेजेंट किया है। तो ऑरलैंडो भी जंगल में, आर्डन के जंगल में चला जाता है और गैनीमीड जो एक पुरुष के रूप में है, गैनीमीड के रूप में रोजालिंड जो कि एक गैनीमीड के रूप में है, वो ऑरलैंडो को प्रेम की शिक्षा देने लगती है और उससे बाद में प्रेम करने लगती है। रोजालिंड्स टैलेंट्स एंड चार्म्स आर full displayed. Only Rosalind, for instance, is both aware of foolishness of romantic love, and she was aware of the foolishness of romantic love and delighted to be in love. Rosalind multi-dimensional talented एक फीमेल कैरेक्टर है, जो ऑरलैंडो को प्रेम की शिक्षा तो देती है, साथ ही साथ वो रोमांटिक प्रेम की मूर्खताओं पर और प्रेम करने के आनंद पर दोनों का अनुभव रखती है और दोनों से अच्छे से जानकारी भी रखती है, विज्ञ भी है। और वो अपने आसपास के सभी लोगों को थिंकिंग करना, फील करना एंड लव बेटर देन दे हैव प्रीवियस इंफॉर्मेशन, और जो उनके आसपास के जो लोग हैं उनको प्रेम करना, महसूस करना, विचार करना, नए नए आइडियाज़ को सोचना, इन सारी चीज़ों के लिए प्रेरित करती है, जैसा कि उनको पहले इन चीज़ों का ज़्यादा ज्ञान नहीं था। इस प्रकार से रोजालिंड बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फीमेल कैरेक्टर है, जिसके चारों तरफ पूरे प्ले की कहानी घूमती रहती है। सीलिया भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इस एज यू लाइक इट प्ले में। सीलिया बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। यह ड्यूक फेडरिक की पुत्री है, ये ड्यूक फेडरिक की पुत्री है और ड्यूक सीनियर की भतीजी है, तथा रोजालिंड इसकी सबसे अच्छी सहेली भी है। सीलियास डिवोशन टू रोजालिंड इज अनमैच्ड। वह रोजालिंड से इतना प्रेम करती है जिसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। टू मेक ट्रिप टू Celia assumes a disguise of a simple shepherdess and calls herself Elena. So, जब ड्यूक फेडरिक रोजालिंड को आर्डन के जंगल में जाने के लिए कह देता है, तो सीलिया को बहुत दुख होता है, क्योंकि रोजालिंड उसकी चचेरी बहन तो थी ही, साथ ही साथ उसकी अच्छी सहेली भी थी। अतः अपने पिता के इस दुष्ट प्रवृत्ति और ऐसे व्यवहार से दुखी हो जाती है
और वह भी आर्डन के जंगल में रोजालिंड के पीछे पीछे चली जाती है। जिस प्रकार से रोजालिंड ने गैनीमीड का रूप धारण कर लिया था, उसी प्रकार से सीलिया ने भी एलिना का रूप धारण कर लिया था और जंगलों में रहने लगी। सीलिया एज elucidate make clear by her extreme love for Rosalind and in and her immediate devotion to Oliver। सीलिया जंगलों में जाकर के जो एलिना के रूप में है वो गैनीमीड से प्रेम करने लगती है। गैनीमीड जो कि रोजालिंड है और गैनीमीड के रूप में उसने अपने आप को भेष बदल लिया है। लेकिन नाटक के अंत में सीलिया जो कि एलिना के रूप में रहती है वो ओलिवर से प्रेम करती है और उससे उसकी शादी हो जाती है। इस प्रकार से सभी पात्र बहुत ही ह्यूमरस हैं और पूरे प्ले में रीडर्स का ध्यान आकर्षित करते रहते हैं। सीलिया possesses loving hearted but is prone to deep almost excessive emotions। सीलिया बहुत ही अच्छे स्वभाव वाली फीमेल कैरेक्टर है। वो प्रेम करना चाहती है, साथ ही साथ पूरे नाटक में वो अत्यधिक भावनाओं से पीड़ित भी रहती है। नेक्स्ट किसी दूसरे कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। द नेक्स्ट कैरेक्टर दिस इज ऑरलैंडो। ऑरलैंडो also very important character in the play as you like it। He is the youngest son of Sir Roland de Boys। Sir Roland de Boys, he had two sons. One was Orlando and elder son was that is Oliver। Oliver was very cruel, but Orlando was very gentle-hearted character and gentle-hearted boy। So younger brother of Oliver, yes, Orlando is an attractive and young man, and under his brother neglectful care has languished without gentleman's education and training। This is very tragic part of this play। Orlando and Oliver, they were two real brothers, but cruelness of Oliver is displayed when he bereaved his younger brother, that is Orlando, from the very important and very gentleman's education। यानी ऑर्लैंडो को ओलिवर ने एक अच्छी शिक्षा नहीं लेने दी, एक अच्छे लोगों वाली शिक्षा नहीं लेने दी और उसको इसे इसे ये एजुकेशन उसके लिए उसने उपलब्ध नहीं होने दी और उसके कैरेक्टर को बहुत ही अच्छा नहीं होने दिया। यस, regardless he is considered himself have great potential। यद्यपि ऑर्लैंडो में बहुत सारी पोटेंशियल है, वो अपनी एनर्जी का बहुत अच्छे से उपयोग करना चाहता है। His victorious battle with Charles proves himself right। Charles, this is also very important character। Charles had been presented as wrestler। ओलिवर ऑर्लैंडो को डिफीट करने, उसे हराने और मारने के अनेक प्रयास करता है और चार्ल्स जो कि रिस्टलर है, जो बहुत ही ताकतवर है, उससे ओलिवर ऑर्लैंडो को लड़ा देता है ताकि चार्ल्स उसको मार दे। लेकिन ऑर्लैंडो केयर्स फॉर द एजिंग एडम इन द फॉरेस्ट आर्डन। जब ऑर्लैंडो को आर्डन के जंगल में निर्वासित कर दिया जाता है और ऑर्लैंडो के साथ उसका बूढ़ा एक नौकर एडम भी जाता है। अब एडम चूंकि बूढ़ा हो चुका था और जंगलों में ऑर्लैंडो की ज़्यादा सेवा नहीं कर पाता है, लेकिन ऑर्लैंडो अपने बूढ़े उस नौकर का भी बहुत ख्याल रखता है, बहुत उसको उसके साथ अच्छे से व्यवहार करता है। इस प्रकार से उसके हृदय की दयालुता और जेंटलनेस स्पष्ट होती है। इसके अलावा ऑर्लैंडो एक अच्छा भाई भी है। जब उसका भाई ओलिवर, जिसने उसके साथ अच्छा नहीं किया था, एक बार उस पर शेरनी, जब भूखी शेरनी हमला कर देती है तो वो उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता है। ही इज अ फिटिंग हीरो फॉर द प्ले। Yes, he was presented to be
रियल हीरो इन दिस प्ले। इस प्ले में उसे रियल हीरो के रूप में प्रेजेंट किया गया है, क्योंकि चार्ल्स जो कि फाइटर है, रिस्टलर है, उसे भी हराता है और अपने भाई ओलिवर को भूखी शेरनी की हमले से बचाता है और हीरोइक एक्ट प्रेजेंट करता है। ही प्रूव्स नो मैच फॉर हर बिट और पोइट्री द मोस्ट ऑब्वियस रोमांटिक मैच फॉर रोजालिंड। यानी ऑर्लैंडो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है और इस एज यू लाइक इट प्ले में उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। दूसरे कैरेक्टर के बारे में जानते हैं, दैट इज ओलिवर। ओलिवर दूसरा महत्वपूर्ण एक कैरेक्टर है। जैसा कि अभी हमने बातें की थी, ये डी बॉयस के दोनों पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र ओलिवर है, जो कि क्रूअल है और अपने छोटे भाई ऑर्लैंडो से नफरत करता है। ओलिवर द ओल्डेस्ट सन ऑफ सर रोलैंड डी बॉयस। जैसा अभी हमने बताया, सर रोलैंड डी बॉयस के दो पुत्र थे, एक ओलिवर, दूसरा ऑर्लैंडो। सो एंड सोल इनहेरिटर ऑफ द डी बॉयस स्टेट। क्योंकि उसने छोटे भाई ऑर्लैंडो को जंगलों में भेज दिया है, अतः वह डी बॉयस की पूरी प्रॉपर्टी का एकमात्र उत्तराधिकारी भी है। Oliver is loveless young man and who begrudges his brother Orlando. Oliver इस पूरे प्ले में उसे कोई प्रेम नहीं करता है, वो लवलेस व्यक्ति है और अपने भाई ऑर्लैंडो से वह उसे समझ नहीं पाता है और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है और ऑर्लैंडो को एक अच्छी भद्र पुरुषों वाली एजुकेशन से भी मुक्त रखता है, उसे वो अच्छी एजुकेशन नहीं दिलाता है। ही एडमिट्स हेटिंग टू ऑर्लैंडो विदाउट कॉज और रीजन। वो स्वीकार करता है कि वो अपने छोटे भाई ऑर्लैंडो से वो नफरत बेवजह करता है, जिसका कोई ठोस कारण भी नहीं है। ही गोज टू ग्रेट लेंथ्स टू इंश्योर हिज ब्रदर्स डाउनफॉल। वो अपने भाई ऑर्लैंडो को हर तरीके से नीचा दिखाना चाहता है, उसका पतन चाहता है और उसका हर तरीके से नुकसान करना चाहता है। When Duke Frederick employs Oliver to find his missing brother, जब ड्यूक फेडरिक अपने भाई खोए हुए भाई को, जिसे उसने एग्जाइल पर भेज दिया था, जो आर्डन के जंगल में कहीं रहता था, उसे ढूंढने के लिए ओलिवर को उस मिशन पर लगा देता है। Oliver finds himself living in despair in the forest of Arden। आर्डन के जंगल में जब ओलिवर ड्यूक सीनियर को ढूंढने जाता है तो वहाँ वह बहुत ही निराश हो जाता है। वेयर ऑर्लैंडो सेव्स हिज लाइफ। जंगल में भूखी शेरनी उसके ऊपर जब हमला करती है तो ऑर्लैंडो उसे पहचान लेता है और उसके जीवन की रक्षा करता है। इस प्रकार से this action of Orlando displays undeserved generosity, prompts Oliver to change himself into better। जब ऑर्लैंडो ओलिवर की जान एक भूखी शेरनी से बचाता है तो शीघ्र ही ओलिवर भी एक अच्छे इंसान के रूप में परिवर्तित हो जाता है और अब वह बहुत ही स्नेहशील और उदार व्यवहार वाला व्यक्ति बन जाता है। His transformation is evidenced by his love for the disguised Celia। वह सीलिया जो कि एक भेष बदल करके एलिना के रूप में रह रही थी, उसे देख करके उसका संपूर्ण व्यक्तित्व में प्रेम का भाव जागृत हो जाता है। Whom he takes to be a simple shepherd। और सीलिया जो कि ड्यूक फेडरिक की बेटी है, आर्डन के जंगलों में वह एलिना के एक शेफर्ड के रूप में रहती है, शेफर्डेस के रूप में रहती है
तो वह उसे बहुत प्रेम करने लगता है। इस प्रकार से वो निर्दयी से एक स्नेहशील व्यक्ति बन जाता है। कुछ दूसरे पात्रों के बारे में, दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। जैक, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द प्ले। जैक भी इस प्ले में बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। अ फेथफुल लॉर्ड हु accompanied Duke Senior into exile in the forest of Arden. Students, again and again I tell you, this is very important name. This is Arden. Many times this question is put in different of PGT and TGT examinations, where in which play of Shakespeare's this name Arden as a forest appears. So this is very important. जब ड्यूक सीनियर जंगल में निर्वासित हो जाता है तो जैक, जो कि उसका एक लॉयल काउंसलर है, वो उसके साथ जंगलों में रहने के लिए चला जाता है। जैक इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक फिगर इन एल्जाबेथन कॉमेडी। एल्जाबेथन के समय में जितनी भी कॉमेडी लिखी गई, वहाँ जैक को एक अच्छे कैरेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट किया गया था। The man possessed of hopelessly melancholy disposition. तो इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से अक्सर उस समय के प्लेज में रिप्रेजेंट किया जाता था। So Jack is very important character. He is presented much like of referee. This is again very important fact. He was presented as much like referee in football game. He stands on the sidelines. Yes, वो sideline पर खड़ा रहता है, watching the judging and actions of other characters without ever fully participating. और जैक किसी भी गेम में डायरेक्टली कोई पार्टिसिपेशन नहीं करता है, लेकिन जो भी कॉन्टेस्टेंट होते हैं, जो भी प्रतिस्पर्धा करने वाले प्लेयर्स होते हैं, उनके एक्शन को जज करता रहता है और उनको केयरफुली देखता रहता है। इस प्रकार से जैक का रोल इस प्ले में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैक alone refuses to follow Dick Senior and other courtiers back to court, and instead of resolves to assume a solitary and contemplative life in a single hut. इस प्रकार से जैक एक विचारशील जीवन जीता है, एकाकी जीवन जीता है। तो इस प्रकार से जैक वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द प्ले। कुछ और भी कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर दैट इज टचस्टोन। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द प्ले एंड मेनी टाइम दिस particular name is asked. This is also put as a question in different PGT and TGT examinations. So touchstone, this is very important, especially name of this character. He is as a clone in Duke Frederick's court. ड्यूक फेडरिक के दरबार में वो एक क्लोन के रूप में है। Who accompanies रोजालिंड एंड सीलिया in their fight to Arden. आर्डन के जंगल में जब वे चली जाती हैं, जो रोजालिंड और सीलिया फ्लाइट यानी चली जाती हैं, तो वो उनके साथ साथ टचस्टोन भी चला जाता है। Although Touchstone's job as a fool is to criticize behavior and point out the folly of those around him. इधर टचस्टोन का काम एज ए फूल भी एक जोकर के रूप में है, जो लोगों के व्यवहार को क्रिटिसाइज करता है और लोगों के व्यवहार में मूर्खता को स्पष्ट करता है, पॉइंट आउट करता है, जिससे उसके आसपास जितने भी लोग हैं उनमें ह्यूमरस का भाव उत्पन्न हो जाए और पूरा माहौल जो कि ट्रेजिक हो गया है, पूरे प्ले का माहौल ट्रेजिक में कन्वर्ट हो गया है, वो शीघ्र ही हैप्पीफुल हो जाता है। टचस्टोन फेल्स टू डू सो इवन इन अ फ्रैक्शन ऑफ रोजालिंड्स ग्रेस। और इस प्रकार से टचस्टोन अपने इस जॉब को करने से मिस कर देता है। नेक्स्ट इज मिस्ट्रेस द क्लोन सीम्स होपलेसली वल्गर एंड नैरो माइंडेड। इसके अलावा नेक्स्ट टू हिज मिस्ट्रेस द क्लोन सीम्स होपलेसली वल्गर एंड नैरो माइंडेड। लेकिन यह क्लोन टचस्टोन होपलेसली वल्गर एंड नैरो माइंडेड अपीयर होता है, दिखाई प्रतीत होता है।
Almost every line he speaks echoes with body innuendo gestures. जो कुछ भी वो बोलता है वो पूरा बॉडी यानी इंडिसेंट और इन्वेंडो इन्वेंडो भी गेस्चर संकेत करके बताने वाला होता है। बॉडी इंडिसेंट एक्शंस यानी अश्लीलता से भरा हुआ उसका जो भी शब्द बोलता है वो अश्लीलता से भरा होता है। इस प्रकार से उसकी जो डिसेंसी है वो स्पष्ट रूप से खो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दिस इज सिल्वियस। सिल्वियस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। ही इज अ यंग सफरिंग शेफर्ड। वो एक युवा शेफर्ड है हु इज डेस्परेटली इन लव विद डिसडेनफुल फीब। वो फीब से प्रेम करता है। फीब वर्चुअस सिल्वियस प्रोस्ट्रेट्स हिमसेल्फ बिफोर ए वुमन। क्योंकि सिल्वियस एक महिला के सामने प्रोस्ट्रेट मीन्स साष्टांग हो जाता है उसके प्रेम को पाने के लिए, और वह महिला फीब होती है। इन द बिगिनिंग फीब refuses his love because Phoebe also fall in love with Rosalind as a disguise in Ganymede. फीब जो कि एक शेफर्डेस है वह सिल्वियस के प्रेम को ठुकरा देती है और रोजालैंड से प्रेम करने लगती है जो कि गैनीमीड के रूप में भीष्म में है। लेकिन नाटक के एंड में फीब का सिल्वियस से प्रेम हो जाता है और शादी में कन्वर्ट हो जाता है। फाइनली सिल्वियस वाज एबल टू विन ऑब्जेक्ट ऑफ हिज डिजायर, अर्थात वह फीब के प्रेम को पा लेता है और उससे शादी हो जाती है। इस प्रकार से पूरा नाटक, पूरा प्ले रोमांस और कॉमेडी से भरा हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर about which we are just right now we are talking, he was Phoebe. Yes, this is Phoebe, young shepherdess. Yes, she is very young shepherdess as I told right now. वो एक युवा भीड़ चराने वाली एक महिला है who disdains the affection of Sylvius. प्रारंभ में वो सिल्वियस के प्रेम को ठुकरा देती है, but finally and she falls in love with Rosalind, and in the beginning she falls in love with Rosalind, but finally he fell into marrying Ganymede, who is really Rosalind in disguise and Sylvius. So as I told you, in the beginning she falls in love with Ganymede, who was in disguised as Rosalind. Ganymede जो कि रोजालैंड का ही बदला हुआ भेष था उसे फिर प्रेम करने लगती है, लेकिन अंत में उसे पता चलता है और वह सिल्वियस से प्रेम करने लगती है और उससे शादी हो जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर को जानते हैं। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, दैट इज चार्ल्स। In the beginning I told you Charles was a good wrestler, a professional wrestler. Yes, in Duke Frederick's court, Duke Frederick के कोर्ट में वो एक प्रोफेशनल रेस्लर है। चार्ल्स demonstrates both his caring nature and his political savvy. Yes, Charles was expert both in wrestling and political expertness. When he asked Oliver to intercede in his upcoming fight with Orlando, वह ओलिवर से कहता है कि ऑर्लैंडो के साथ उसकी जो फाइट होने वाली है उसमें वो मध्यस्थता का काम करे। He doesn't want to injure his young man, that is Orlando, and thereby lose favor among noble. Orlando proves unwarranted when Orlando beats him सेंसलेस। यस, यद्यपि वो अच्छा रेस्लर है लेकिन वह ओलिवर के भाई ऑर्लैंडो को चोट पहुंचाना नहीं चाहता और अंत में वह ऑर्लैंडो से हार जाता है। तो चार्ल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज हमने विलियम शेक्सपियर की एक और महत्वपूर्ण प्ले जो कि कॉमेडी है, दैट इज एज यू लाइक इट के बारे में भी हमने एक्सप्लेन किया है। उसके कैरेक्टर्स के बारे में गुड एक्सप्लेनेशन को भी हमने डिस्कस किया है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, जैसा कि मैंने बताया विलियम शेक्सपियर के 4 फेमस ट्रेजेडी हैं उन पर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। और इसी प्रकार के मैं पीजीटी टीजीटी के लिए
लिटरेचर के सारे पार्ट्स, साथ ही साथ ग्रामर के सभी पार्ट्स पर डिफरेंट वीडियोस में बनाऊंगा, जो कि टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन के लिए बहुत आवश्यक होंगे। इससे पहले मैंने इंग्लिश ग्रामर पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। तो यदि आपको लगता है कि ये चैनल आपको आपके उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के लिए पर्याप्त इन्फॉर्मेशन दे पाएगा, तो आप इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। So you just keep on watching and stay motivated. Thank you for watching.